پوڈ کاسٹ بلاک تبصرے میں ہوں شہاب، اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم تقابلی جائزہ لیں گے ہندوستان اور پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے۔ ہندوستان اس وقت ایک انتہا پسندانہ بیانی کی طرف بڑھ رہا ہے اور میڈیا کے کردار سے لے کر حکومتی پالیسی تک سب کچھ نظر آ رہا ہے، جبکہ پاکستان نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ نسبتاً متوازن بیانیہ اور ذمہ دار ریاست کی طرف سامنے آ رہا ہے۔ سر، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارا پہلا سوال یہی ہے کہ کیا آج کا ہندوستان وہی راستہ اختیار کر رہے ہیں جس راستے سے پاکستان 40 سال پہلے گزر چکا ہے؟ شہاب، آج ہم بیلاگ تبصرے میں بات کریں گے، چند تجاویز دیں گے جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان موجودہ کشیدگی ہے اور جنگ کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں اور نیوکلیئر جنگ کی بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ ایسی تجاویز دیں گے جو ہمارے نزدیک اس مسئلے کو کہ دیرپا اور پائیدار حل کی طرف جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ جنگی جنون کو ہوا دیں، بجائے اس کے کہ تقسیم کو اور کشیدگی کو مزید ہوا دی جائے۔ پاکستان اور ہندوستان آپس میں پڑوسی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے ساتھ ساتھ رہنا ہے، لہٰذا اس تنازع کو حل کرنے کے لیے دونوں طرف سے پائیدار اقدامات کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اس وقت پاکستان کے عوام کو غالباً پہلی مرتبہ یہ وہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے جو ان کو ایکسیس ہے، بھارتی چینلز کو دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر وہ ہندوستان کے لوگوں کا رد عمل دیکھ رہے ہیں، اور ان پر یہ آشکارا ہو رہا ہے اور ہم سب پر ہم حیرت سے صدمے کی حالت میں ہیں یہ دیکھ کر کہ بھارت کا معاشرہ، بھارت کی سوسائٹی کس قدر انتہا پسندی کا شکار ہو رہی ہے، جنگی جنون کا شکار ہو رہی ہے، نفرت میں یعنی وہ ڈوب رہے ہیں اور نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو ختم کر دینے، پاکستان پر حملہ کرنے، مسلمانوں سے نفرت کرنے کا جو طریقہ ہے، یہ تو وہ ہندوستان نہیں تھا جو مہاتما گاندھی نے جس کی بنیاد رکھی تھی، جس کو آزاد کروایا تھا، جو جواہر لال نہرو کا ہندوستان تھا، جو گاندھی جو کہ ایک پیسفل سیاست پر اور امن کے ذریعے وہ سیاست کرنے کے دائی تھے، اور وہ ہندوستان اور مسلمانوں اور ہندوؤں کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے۔ آج کا ہندوستان کو دیکھ کر تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہاں پر ایک پاگل پن کا دورہ لوگوں کو پڑا ہوا ہے، جو ہم میڈیا کے ذریعے ان کی تصویر دیکھ رہے ہیں، جو ان کے کمنٹیٹرز کہہ رہے ہیں، جو ان کے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں، جو ان کے جرنیل کہہ رہے ہیں، جو ان کی جو ریفلیکشن جو وہاں کا میڈیا وہاں کی سوسائٹی کا ریفلیکشن ہے۔ بی جے پی کی پاپولیرٹی جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ ہندوستان میں انتہا پسندی کن حدوں کو چھو رہی ہے، اور اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ پاکستان چاہے کچھ بھی نہ کرے، لیکن ہندوستان میں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے عقل کو نہیں استعمال کیا، اگر انہوں نے اس جنگی جنون پر قابو نہیں پایا، تو اس کے نتیجے میں بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ ہندوستان اسی صورتحال سے گزر رہا ہے جس سے پاکستان 40-50 سال پہلے جس سے پاکستان دوچار ہوا، اور آج تک پاکستان اس سے گزر رہا ہے۔ میری مراد جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان میں جس فرقہ واریت کو، جس نفرت کو، جس تقسیم کو جان بوجھ کر جو ہے جنرل ضیاء کی رجیم نے پاکستان کی سوسائٹی میں فروغ دیا تھا تاکہ اس کا اقتدار مضبوط رہے، وہ پاکستان میں ایک بہت بڑا جن بن چکی ہے، اور پاکستان کے معاشرے کو اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان میں فرقہ واریت، مذہبی انتہا پسندی، نسلی بنیادوں پر تقسیم اور نفرت جو ہے یہ ضیاء کے دور میں شروع ہوئی، اور پھر اس کو آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے عمران خان نے مزید فروغ دیا۔ عمران خان نے پاکستان میں مزید پولرائزیشن کی، اور پاکستان میں جو برداشت، جو رواداری، جو سیاسی جو ہے رکھ رکھاؤ اور سیاسی جو ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو کلچر تھا، اس کو عمران خان نے مزید بڑھاوا دیا، جس کے نتیجے میں پاکستانی سوسائٹی جو ہے وہ ہمیں ایک مسلسل کرب میں، ایک افراتفری کی حالات میں، اضطراب کی صورتحال میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ لیکن جب ہم اب بھارت کو دیکھتے ہیں، جب ہم ہندوستان کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اپنی تقسیم اور اپنی سوسائٹی میں جو اضطراب ہے وہ بھولنا پڑتا ہے، کیونکہ بھارت میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے۔ لہٰذا
इस पर दोनों तरफ के सियासतदानों को देखिए, जिस तरह इमरान खान और ज़ियाउल हक ने जो तकसीम है, जो नफ़रत है, उसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, वही काम वही काम नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदुस्तान में कर रहे हैं, और वो हिंदुस्तान में मुसलमानों से नफ़रत की बुनियाद के ऊपर अपनी सियासत चमका रहे हैं। और पाकिस्तान जो है उनका बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको वो हर वक्त सियासत में जिस पर वो बात करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब इस मौजूदा ये जो अभी हालिया कॉन्फ्लिक्ट, जो तनाज़ा और जो कशीदगी हुई है, उसमें अगर हम मुआवजा करें हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के सहाफ़ी, पाकिस्तान के कमेंटेटर, पाकिस्तान के रियासती शख्सियात भी उस किस्म की ज़बान इस्तेमाल नहीं कर रहे। और फिर जो कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ज़ियाउल हक और इमरान खान ने बहुत नुकसान पहुँचाया, लेकिन हम जब अब हिंदुस्तान के साथ अपने मीडिया का या अपने लोगों का मुआवजा करते हैं, तो हमारे यहाँ अब भी ठहराव है, मैच्योरिटी का जो है मुजाहरा किया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो है वो हिंदुस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल्स को और टीवी चैनल्स को, यूट्यूबर्स को जो है बैन नहीं किया, जो कि अच्छी बात है। इससे पाकिस्तानियों को नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में सारे लोग ऐसे नहीं हैं। मैंने हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की स्टूडेंट्स की उस दिन बात सुनी। वो अमन चाहते हैं, वो नफ़रत नहीं चाहते, वो दहशतगर्दी नहीं चाहते। वो कश्मीर में बच्चे कह रहे थे, उनमें इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, मेडिकल के स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटी जाने वाले बिज़नेस के स्टूडेंट थे, लॉ के स्टूडेंट थे, कॉमर्स के स्टूडेंट थे, और वो कह रहे थे कि हम तशद्दुद नहीं चाहते, हम टेररिज्म के मुखालिफ हैं, हम टेररिज्म को रद्द करते हैं और हम अमन के साथ हिंदुस्तान का हिस्सा बन के रहना चाहते हैं। लेकिन वो ये शिकायत कर रहे थे कि हिंदुस्तान में उन पे शक किया जाता है, और उनकी आइडेंटिटी के हवाले से, उनके मज़हब की वजह से उनको इक्वल मसावी शहरी नहीं समझा जाता। और हिंदुस्तान के लोग चूँकि वो कश्मीरी हैं, चूँकि वो मुसलमान हैं, अगरचे वो जितने भी अमन की बात करें, दोस्ती की बात करें, हिंदुस्तान में इवन जब कश्मीर से कोई निकल कर दिल्ली जाता है तो उस पर भी इत्मीनान नहीं किया जाता, उसको भी शक की निगाह से देखा जाता है। तो ये तो हिंदुस्तान के दाखिली मसाइल हैं। पाकिस्तान ने जिस मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमें बिल्डअप करना चाहिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के साबिक तमाम आर्मी चीफ से मुख्तलिफ हैं। ये एक बिल्कुल सीधे और स्ट्रेट सोल्जर हैं और सोल्जर की तरह बात करते हैं। ये जनरल बाजवा से मुख्तलिफ हैं, ये जनरल राहील शरीफ से मुख्तलिफ हैं, ये जनरल कियानी से मुख्तलिफ हैं। देखिए, जनरल बाजवा के हवाले से उनके जो प्रॉपर्टी लेने और कारोबार करने और करप्शन उनके जो रिश्तेदार कर रहे थे, उनके ससुर जो कर रहे थे, उस हवाले से बात हो रही थी। इसी तरह जनरल कियानी के भाई के हवाले से ये बात थी कि वो करप्शन में जो है मुलविस रहे थे और उनके एम्बिशंस थे। जनरल राहील शरीफ ने सियासी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। जनरल जो है क्या नाम है आसिम मुनीर, उनकी जो फाइनेंशियल करप्शन है या उनके हवाले से इस किस्म की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई, बल्कि हिंदुस्तान में आसिम मुनीर का भूत उन पर सवार है। वो उसको एक जिहादी जनरल कह रहे हैं, अगरचे कि वो जिहादी जनरल नहीं है, वो मजहबी हैं, वो मजहबी हवाला जात देते हैं, वो हाफिज़ कुरान हैं। लेकिन उनकी जो स्ट्रेट टॉक है, इस वजह से हिंदुस्तान ने आसिम मुनीर को नंबर 1 टारगेट बनाया है और हिंदुस्तान इमरान खान को अपने डार्लिंग के तौर पर पेश कर रहा है। तो आसिम मुनीर जो है वो एक सोल्जर के तौर पर सिविलियन हुकूमत में जो है इकोनॉमिक साइड पर वो मदद कर रहे हैं, वो दूसरे जो ना शोबों में हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, और एक सिविलियन चेहरा पाकिस्तान में है जिसमें फ़ौज का एक किरदार है जिससे इनकार मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में इक्तिसादी स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, पाकिस्तान में सियासी स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, और इमरान खान को भी इसलिए जेल में रखा गया है कि अगर इमरान खान बाहर आए तो वो सियासी और इक्तिसादी स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं आने देंगे। ये एक हकीकत है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। ताहम आसिम मुनीर साहब के हवाले से एक मेरी गुजारिश है कि उनका जो नुक्ता नज़र है, उनका जो ख़याल है, उनका जो तस्वुर है, वो एक रिवायती पाकिस्तान का वो तस्वुर है जिसमें हम कहते हैं कि कश्मीर हमारी शहरग है और हिंदू और मुसलमान जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उन्होंने अपनी एक तकरीर में कहा कि हिंदू और मुसलमान बिल्कुल साथ साथ नहीं रह सकते, और उन्होंने एक बड़ी इस लिहाज से जो उनकी तकरीर थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, उसमें उन्होंने ये बात की थी। लेकिन उसमें
हमें थोड़ा सा इस बात पर सोचना चाहिए कि जब हम ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। तो जब हम हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे का दुश्मन बना के, एक दूसरे से बिल्कुल राइवल बना के पेश करते हैं, तो उन 20 करोड़ मुसलमानों का क्या होगा जो कि हिंदुस्तान में रहते हैं। हम जब दो कौमी नज़रिए की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसकी बुनियाद मज़हब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मज़हब को बुनियाद बनाएंगे तो फिर जो आप हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, और जो हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। क्या हम 20 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान में ला सकते? इम्पॉसिबल, सवाल ही नहीं पैदा होता पाकिस्तान की इक्वल आबादी जैसे। या क्या वो जो हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान जो मुख्तलिफ रियासतों में बिखरे हुए हैं, क्या वो हिंदुस्तान में कोई अलहदा रियासत कायम कर सकते हैं पाकिस्तान की तरह? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हिंदुस्तान है वो मल्टी कल्चरल है, हिंदुस्तान मल्टी एथनिक है, और उसका वो ऐसे ही हिंदुस्तान को रहना चाहिए, और हमें ऐसा ही हिंदुस्तान चाहिए, न कि ऐसा हिंदुस्तान जिसमें कि मुसलमान और हिंदू दस्तो गिरेबान हों और मुसलमानों को मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक रियासत है, एक अलहदा रियासत बन चुकी है। इसकी जो शनाख्त है वो एक डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट की बुनियाद पर होना चाहिए, जिसकी हम मजहबी जो शनाख्त है उस पर हमें ज़ोर नहीं देना चाहिए, नफ़रत की बुनियाद पर हमें बात नहीं करनी चाहिए। हमें हिंदुस्तान की स्टेट, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं उन पर तनकीद करना चाहिए, लेकिन जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनमें चाहे सिख हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, उनके साथ हमें इक्वल यानी बुनियादों पर बात करनी चाहिए। उन शहरियों का एहतराम करना चाहिए, हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, हिंदुस्तान की सालिमियत का एहतराम करना चाहिए, और हिंदुस्तान से भी ये तवक्को रखनी चाहिए कि वो पाकिस्तान की सालिमियत का एहतराम करेगा। हमें अपने कौमी डिस्कोर्स में इस बात को शामिल करना चाहिए कि हमारा मकसद हिंदुस्तान को तोड़ना नहीं है, हमारा मकसद हिंदुस्तान को बर्बाद करना नहीं है। हम हिंदुस्तान के साथ पुरअमन बकाए बाहमी के उसूल के तहत ज़िंदा रहना चाहते हैं, हम उनके साथ इकट्ठा रहना चाहते हैं। जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, मैंने पिछले वीलाग में कहा कि कश्मीर के लोगों की मर्ज़ी है कि वो जिस रियासत के साथ रहना चाहें, हिंदुस्तान के साथ या पाकिस्तान के साथ, ये उनका इख्तियार है, ये उनकी मर्ज़ी है। अगर वो अलहदा रियासत बनाना चाहें, ये भी उनकी मर्ज़ी है, उसके लिए उन्हें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ डील करना पड़ेगा। हमें चाहे वो कश्मीरियों की जद्दोजहद है, चाहे वो किसी और की जद्दोजहद हो, उसकी सियासी और अखलाकी हिमायत जो कि हम कहते हैं वो हम करते हैं, वो हमें करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने माजी में जो गलतियाँ की, जिनकी निशानदेही मैंने पिछली गुफ्तगू में की कि हमने किस तरह जो है मिलिटेंसी की, जिहादी कल्चर की जो है वो हमने सपोर्ट की और उसको हमने एक्सपोर्ट भी किया। जो माजी में हो चुका वो हो चुका। अब आसिम मुनीर साहब देखिए, वो तालिबान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के, हालांकि वो तालिबान पाकिस्तान ने बनाए थे और समझते हैं कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, लेकिन वो तालिबान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कर रहे हैं। वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ख़वारिज कह रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो मिलिटेंट जो हैं, जो मज़हब के नाम पर दहशतगर्दी करते हैं, मज़हब के नाम पर कत्लेआम करते हैं, वो उनके ख़िलाफ़ हैं और उनको टारगेट कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर ने अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ की, उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जब ईरान ने पाकिस्तान में ऑपरेशन किया। ये चीज़ जनरल आसिम मुनीर को मुख्तलिफ बनाती है साबिक़ जर्नैलों से, जो कि ख़ास तौर पर बाजवा जो कहते थे या मुशर्रफ जो कहते थे उससे मुख्तलिफ बनते। अब जनरल वो कोई खुफिया ऑपरेशन की बात नहीं करते जैसे मुशर्रफ ने वज़ीर आज़म छुप के कारगिल में जाके जो कार्रवाई की थी। जनरल आसिम मुनीर सियासी हुकूमत के साथ, पार्लियामेंट के साथ चल रहे हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई तो फिर हम कार्रवाई करेंगे, और वो एक स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं और हिंदुस्तान को उनकी इस बात को बहुत सीरियस लेना चाहिए। नंबर एक, वो पाकिस्तान के दीगर साबिक़ जर्नैलों से मुख्तलिफ हैं। नंबर दो, वो सीधे सिपाही हैं। वो मौका आने पर अपने जो हलीफ जिनको हमने बनाया, जिनकी सरपरस्ती की, जिन मिलिटेंट्स को पाकिस्तान की साबिक़ हुकूमत ने फ़रोग़ दिया, उनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या अफ़गान तालिबान ऊपर दबाव लाना हो। इसी तरह ईरान में भी उन्होंने कार्रवाई की। तो अगर हिंदुस्तान ने कार्रवाई की तो पाकिस्तान दरेग नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने से। तो एक तो ये चीज़ है, लेकिन
ہمیں اس کے ساتھ پاکستان میں یہ جو ہمارا بیانیہ ہے اس میں تھوڑی سی ترمیم کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور انہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس مختلف کا یہ مطلب نہیں کہ ہندو اور مسلمان ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہاں جو ہندو پاکستان میں رہتے ہیں وہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے کہ مسلمان پاکستانی ہیں، اور جو مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں انہیں ہندوستان کی ریاست کے ساتھ جو ہے وہ وفادار رہنا چاہیے، کیونکہ وہ وہاں کے سٹیزن ہیں۔ اور ہندوستان یہ جو کر رہا ہے، پابندیاں لگا رہا ہے اور چینلز بند کر رہا ہے اور شادیوں پہ پابندیاں لگا رہا ہے اور مسلمانوں پہ جو جبر و ظلم کر رہا ہے، اس سے ہندوستان خود ایکسپوز ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میری دوسری تجویز یہ ہے کہ پاکستان میں اب یہ پالیسی بنا لی جائے کہ کوئی بھی آپریشن، چاہے وہ کتنا ہی خفیہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کہیں جب کیا جائے، ہماری سیکرٹ ایجنسیز بے مہار نہیں ہونی چاہیے، ہماری خفیہ ایجنسیز بے مہار نہیں ہونی چاہیے، جو اپنے جتھے بنائیں، جو اپنے ملیٹنٹس کے پسندیدہ گروپس بنائیں، یا ان کی خفیہ کارروائیاں کریں جن کا حکومت کو پتہ ہی نہ ہو، جیسے کہ جنرل مشرف نے کیا تھا۔ اب چونکہ ملٹری اور سول حکومت ساتھ ساتھ ایک پیج پہ چل رہے ہیں، تو یہ جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے، اسی کمیٹی میں بتایا جائے، اسی کمیٹی کو اعتماد میں لیا جائے، جب بھی آپ کوئی آپریشن کریں، جب بھی اور آپ کوئی کارروائی کریں، کسی لوور لیول پر کسی بھی سیکرٹ سروس کے افسر کو، چاہے وہ آئی ایس آئی کا ہو، چاہے وہ ایم آئی کا ہو، چاہے وہ ملٹری یا ایئر فورس کو، اس کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بل پر حکومت کو مطلع کیے بغیر، حکومت کو اطلاع دیے بغیر کہیں جا کر کوئی ایڈونچر کرے، کہیں جا کر کسی ملیٹنٹ گروپ کی سرپرستی کرے اور پاکستان کے لیے ایک کرائسس پیدا کرے۔ اس کرائسس سے نکلنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان، جیسے کہ وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ وہ جو ہندوستان میں افسوسناک، شرمناک، قابل مذمت واقعہ ہوا ہے، سویلینز کو جو قتل کیا گیا ہے 26 کو، اس واقعے کی نہ صرف ہم نے مذمت کریں بلکہ اس کی وہ جو انہوں نے بین الاقوامی انکوائری کی بات کی ہے، اس پر ہندوستان کو دباؤ ڈالیں کہ وہ اس انکوائری کے لیے تیار ہو جائے، اور اس انکوائری کے نتیجے میں اگر پاکستان پہ کوئی ثابت ہو تو اس پہ پھر پاکستان کارروائی کرے۔ دوسرا، ہم ہندوستان کو اور بین الاقوامی کمیونٹی کو یہ انشور کریں کہ ہمارے ہاں کوئی فوجی آپریشن، کوورٹ آپریشن ساری دنیا میں ملٹری کرتی ہے، ساری دنیا میں سیکرٹ سروسز کرتے ہیں، لیکن وہ فار ایگزامپل امریکہ کی فوج، امریکہ کی سی آئی اے کبھی بھی جو ہے وہ امریکی صدر کے علم کے بغیر، امریکی صدر کی اپروول کے بغیر، امریکی حکومت کی اپروول کے بغیر کوئی کارروائی نہیں کرتی۔ یہی حال برطانیہ اور دوسرے ممالک میں ہے، تو یہ پاکستان میں بھی ہونا چاہیے، جہاں پر یہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو فورم ہے، اس فورم کے اوپر بتایا جائے کہ اگر ہم کوئی خفیہ آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کا لاجک کیا ہے، اس کا ریشنل کیا ہے، وہ کیوں ناگزیر ہے۔ تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ حکومت کے لیے یہ آسان ہوگا کہ وہ جو ہے وہ کسی آپریشن کو ڈیفینڈ کرے یا کسی کو جو ہے اس کا جواز پھر پیش کرے، اور یہ جو پاکستان کے میں جو ایڈونچرزم ماضی میں ہوتا رہا ہے یہ بھی نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہندوستان کا یہ جو چہرہ ہے جو اب دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے، اس میں ہم نے اب تک جو رویہ اپنایا ہے اسے مزید جو ہے ہمیں اسی کو فروغ دینا چاہیے، میچیورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بیلنسڈ اوپینین دینی چاہیے، بیلنسڈ انالیسس دینے چاہیے، اور نفرت کا پرچار نہیں کرنا چاہیے بلکہ امن کی بات کرنی چاہیے، ہندوستان کے ساتھ تجارت کی بات کرنی چاہیے، اور ہندوستان کو کھلے دل سے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ اور اگر ہندوستان پاکستان میں مداخلت کرتا ہے، جیسے کہ اب وہاں پہ لوگ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ آپ BLO کو سپورٹ کریں یا طالبان کو سپورٹ کریں، تو اگر ہندوستان پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے تو پھر اس کے ثبوت دنیا کے سامنے پیش کرنے چاہیے، میڈیا کے سامنے پیش کرنے چاہیے، اور ہمارے میڈیا کو، ہماری حکومت کو، پاکستان کی حکومت کو، ہندوستان کے لوگوں کو یہ اپیل کرنا چاہیے، ہندوستان کے لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہیے کہ دیکھیے ہم ہندوستان کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم ہندوستان کو بطور ریاست اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ہم کوئی ایسی کارروائی نہیں کرنا چاہتے کہ جس سے ہم ہندوستان میں کوئی نقصان پہنچے۔ اگر ہندوستان ہمیں نقصان پہنچائے گا ہم آپ کے سامنے لائیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے، اور پھر ہم کہیں گے کہ ہمیں اس کا جواب دیں بین الاقوامی فورمز پر، ریجنل فورمز پر، اور اگر کوئی اس کا حل نہ نکلے تو پھر ہم یہ کارروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں۔
पाकिस्तान के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए, ख़ासतौर पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल अच्छी नहीं है। हिंदुस्तान तो ये चाहता है कि पाकिस्तान में हाई अलर्ट रहे। अब ये देखें ना, हाई अलर्ट के नतीजे में हमारे जो जहाज़ उड़ रहे हैं, हमारी जो फ़ौज की मोबिलाइजेशन हो रही है, हम ये जो सब कर रहे हैं इस पर पैसे लग रहे हैं। पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को इक़्तिसादी जो है इस्तेहकाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान को किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त जिस क्राइसिस में है इक़्तिसादी, उससे निकलने की उसको ज़रूरत है। इसीलिए ये पहला कदम हमें उठाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब को रब्ता करना चाहिए मोदी साहब से और उनसे बात करें। और ये जो फ्यूल नहीं डालना चाहिए, आग पर पेट्रोल नहीं डालना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान कमज़ोर है। अगर हिंदुस्तान एग्रेशन करे आप ज़रूर उसका जवाब दें, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को ये बताएं कि देखिए हम नहीं चाहते जंग, और जंग कोई हिंदुस्तान के लिए भी अच्छी बात नहीं, हिंदुस्तान के लिए भी कोई पॉजिटिव बात नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान अभी कह रहा है कि मैं एक रीजनल पावर बन रहा हूँ, सुपर पावर बन रहा हूँ, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए और वहाँ पर कंपनीज आए। अगर जंग होगी तो कौन हिंदुस्तान में आएगा? अगर जंग होगी तो पाकिस्तान के साथ जंग का मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट उनका चीन के साथ बढ़ सकता है, बांग्लादेश के साथ, वो बांग्लादेश को भी धमकियाँ दे रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि आखिरी बात, शहाब बहुत लंबी बात हो गई, पाकिस्तान को दाखिली तौर पर एक तो इस बयानिए में थोड़ी सी हमें अमेंडमेंट करनी चाहिए कि हमारा टारगेट हिंदुस्तान के लोग या वहाँ पर कोई मजहबी तबका, जैसे कि हम कहते हैं कि हिंदू मुसलमान, अब ज़ाहिर है हमारा मज़हब हिंदुओं से मुख्तलिफ है तो हम मुख्तलिफ हैं, हमारा मज़हब ईसाइयों से मुख्तलिफ है तो मुख्तलिफ हैं, हमारा मज़हब यहूदियों से मुख्तलिफ है तो मुख्तलिफ है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम यहूदियों और ईसाइयों के साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हम उनके साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं। लिहाजा हम को एग्जिस्ट अपने मुल्क में हिंदुओं के साथ कर सकते हैं, और मुसलमानों को हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ को एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ा मुल्क है, उसकी आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं। लिहाजा उनका भी ये है कि वो उनके यहाँ भी ये नफ़रत की जो सियासत हो रही है, जो मोदी कर रहे हैं, ये बहुत नुकसान पहुँचाएगी हिंदुस्तान को। ये हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं, और हिंदुस्तान के लोगों को, वहाँ की मीडिया को समझना चाहिए। इट्स रियली शॉकिंग to observe. It's really shocking to see how the Indian media is behaving, how their so-called intellectuals, English speaking, elite, what they are talking is just nonsense. It's rubbish. It's madness. They should stop it. Come on. ये आप पाकिस्तान की जो बैशिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान का आपने हवा बनाए हुए, कुछ और काम करें। आपके अपने मुल्क के 20 करोड़ लोगों को जब कंडेम करेंगे, जो आपके फेलो सिटीजन्स हैं, जैसे कि वो कश्मीर के नौजवान बच्चे बच्चियाँ, वो कह रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं, हम दहशतगर्दी को कंडेम करते हैं, हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, हम मिलिटेंसी नहीं चाहते, लेकिन वो आपसे खौफजदा हैं, वो आपसे डर रहे हैं। तो ये जो लोग हिंदुस्तान में नफरत फैला रहे हैं, वो कोई पाकिस्तान को नुकसान इतना नहीं पहुंचा रहे जितनी डिससर्विस वो इंडिया की कर रहे हैं। वो इंडिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहाँ के सोशल फाइबर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहाँ की सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप अपने घर को संभालें। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, इसने माजी में बहुत गलतियाँ की हैं, ब्लेंडर्स की हैं, और तवक्को ये है कि पाकिस्तान ने उससे बहुत सबक सीखा है। एक ऐसा सबक सीखा है जो खून में डूबा हुआ सबक है। हमारी जिहादी पॉलिसियों के नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुई, और वही जिहादी कर रहे हैं जिनको पाकिस्तान ने पाला। तो पाकिस्तान ने इससे सबक सीखा है। पाकिस्तान को जो है अब आगे बढ़ना है, और अमन के पैगंबर के तौर पर जो इस्लाम का मिशन है, जो मुसलमान का मिशन है, अमन और सलामती, इस्लाम की माने ही सलामती हैं, इस्लाम का वो चेहरा पाकिस्तान को सामने लाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का। ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, जहाँ हमने कोशिश की कि बग़ैर तासुब और एक संजीदा और तारीख़ी तनाज़ुर में सूरत हाल का जायज़ा लें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।